Good morning, students. Morning, sir. We were covering the sixth lesson of civics, and we will continue with the lesson. But before I proceed with the lesson, let us all of you kindly join with the link and give your attendance. Okay? Okay, ma'am. I'm sharing the link in the group. Check your mobile, children. Link has gone. Yes, ma'am. Okay, join the link and give your attendance. Then we start with the chapter. I hope all of you have gone through the content. ठीक है ना? राइट टू फ्रीडम में क्या क्या है? ठीक है? अनुच्छेद 22 में क्या क्या है? ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे मेरे ख्याल से. आशुतोष, अभिषेक, सॉरी, अभिषेक, give your attendance. Wait. No. Shall we start? हो गया सारे बच्चों का? Yes, ma'am. मुस्कान खाली आपका हुआ है, बाकी का तो अभी जुड़ रहे हैं. हाँ? यस मैम, हो गया. यस मैम, कर दिए कर दिए. यस मैम, हो गया. अरे Yes, ma'am. हो गया. कोई तो इंग्लिश बोला करो. हाँ? यस मैम, डन. चलो ठीक है. Let us start with the lesson. So have a look, children. We were covering the topic and we were covering the DK बासु guidelines. ठीक है ना? हम लोग DK बासु guidelines कर रहे थे और DK बासु guidelines को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि ऐसी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हमें जो है डीके बासु गाइडलाइंस के थ्रू मिलती है. एंड व्हेन वी वेंट थ्रू द कंटेंट, जो कंटेंट मैंने फॉरवर्ड किया है उसमें आपने देखा होगा the DK Basu guidelines were related to the state of West Bengal. Okay, it were related to state of West Bengal and in that we saw many other things. आपके बुक में जो मेंशन है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें मेंशन की गई हैं. डेली डायरी हो गया और बाकी सारी चीजें हो गई. ठीक है ना? Now let us turn to page number 72. Have a look, children. Now let us return to the story of Santi and answer the following questions. When Santi was arrested for theft, S.I. Rao also kept her brother Sushil in police lockup for 2 days. Okay, was it legal for the police to detain him? Was it legal for the police to detain him? हाँ? क्या ये लीगल था? हाँ? बताओ. No, ma'am. Question number 1 No. A. Okay, page number 72. ये क्वेश्चन है, वहां पे पेंसिल से आप लिख सकते हो. ओके, सी, वाज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? ओके, तो हाउ डू वी स्टार्ट विद द आंसर? जब कभी भी हमसे पूछा जाता है क्या वो कानूनी था उनका सुशील को जेल के अंदर रखना और उनको डिटेन करना, तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वी स्टार्ट विथ यस और नो. सो द आंसर इज नो, इट वाज नॉट लीगल. It was not legal to what? To detain Sushil. ठीक है ना? So it was not legal to detain. Sorry, it will be detain. ठीक है ना? Detain Sushil. सुशील को डिटेन करना जो है लीगल नहीं था. Now see, does it violate the DK Basu guidelines? क्या ये DK Basu guidelines को violate करता है? Yes. Yes, it does violate the DK Basu guidelines. ठीक है ना? DK Basu guidelines को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है. ठीक है ना? It does violate the DK Basu guidelines. Okay. Now question number B. Have a look, children. दूसरा क्वेश्चन,
Did SI Rao do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti and filing a case against her? सूरज, अनम्यूट करो खुद को। सूरज, नॉट रेस्पॉन्डिंग। लग रहा है लिंक से जुड़ जाते हो और जुड़ के कुछ और करने लगते हो। हाँ, शिवांश चौबे, व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर बी, डिड SI Rao do enough to question witnesses and compile evidence before arresting Shanti? No, ma'am. ओम सिंह, शिवांश चौबे से पूछा जा रहा है। ओम सिंह हैज बिकम स्टूडियस, हैं? अच्छी बात है। यस शिवांश चौबे, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या SI राव ने जो वहां पे जो मौजूद थे, ठीक है ना, जो गवाह मौजूद थे वहां पे, और तथ्यों को जो है अच्छी तरीके से उन्होंने खंगाला, और एविडेंस जो है, ठीक है ना, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की शांति के खिलाफ अरेस्ट करने के पहले। क्या उन्होंने ये सब किया था? Shivansh Chaubey is saying yes. He's nodding his head. Is it right, Om? No, ma'am. No. क्या किया था? No, SI ma'am. राव ने क्या किया था? हाँ? Ma'am, arrest कर लिया था। So what we'll write? Okay. We will write no. SI Rao, okay, did not do his duty properly. Did not do his duty properly. Okay. Instead, I can write this. Instead, he abided. Okay. He abided by the a statement of Mr. and Mistress Sindhe. ठीक है ना, उन्होंने एक तरफा जो है मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे के वक्तव्य को लेके आगे बढ़े वो, ठीक है ना, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो है अपना कार्य अच्छे से नहीं किया। ठीक है ना, अगर कार्य उतना अच्छे से किए होते तो हो सकता था सिचुएशन कुछ और होता। ठीक है ना, हो सकता था कि सिचुएशन कुछ और होता। So see, have a look children. Now question number 2. Now let us take a slightly different scenario. Shanti and her brother Sushil go to the police station to complain that Mistress Sindhe, 20-year-old son, had stolen rupees 15,000 that they had been saving up. Do you think that the officer in charge of the police station will promptly lodge an FIR? आपको क्या लगता है, अगर सुशील और शांति जाके मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे के लड़के के खिलाफ कंप्लेन दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, कंप्लेन अलग चीज हो गई, शिकायत हो गई, और याचिका पिटीशन होता है, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे वो लोग जाके अगर शिकायत करते हैं कि ऐसा जो मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे है उनके लड़के ने उनकी सेविंग्स में से 15,000 रुपए चोरी किए, तो इसमें SI राव का क्या रिएक्शन हुआ होता? What would have been the reaction? तृप्ति कुमारी, अनम्यूट करो खुद को। तृप्ति, I don't know why these girls they don't respond. श्वेतांजलि, आपके हिसाब से क्या हुआ होता? SI राव जो है इनका कंप्लेन रजिस्टर किए होते हैं कि नहीं? अभी जुड़ी ही नहीं है लगता है श्वेतांजलि। हाँ, मेरा माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा था उस समय। कौन बोल रहा है? मैं वो शिवांश चौबे। हाँ, शिवांश चौबे। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन आप सिर हिला रहे थे, उसके फेवर में बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि मैम मेरा माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अब एक्सक्यूजेस मत दो, ठीक है ना। हु विल से द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 2? क्या SI राव जो है, ओम सिंह तुम चुप रहो, उछलो मत, ठीक है ना, ओके। क्या SI राव जो है मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे के लड़के के खिलाफ कंप्लेन दायर करेंगे? अभिषेक यादव मेरे सामने बैठे हैं, कह रहे हैं दायर करेंगे।
क्यों नहीं दायर करेंगे? नो मैम। व्हाई नो मैम? मैम एक्यूज मिल गया है हाँ, क्योंकि मैम शांति जेल में है तो वही चुराई है, उसी पे इंजाम है तो। अरे अभी उसको नहीं पकड़ना है, हम दूसरा कंटेक्स्ट ले रहे हैं, हम दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं। वी आर टेकिंग अ डिफरेंट सिनेरियो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुशील और शांति जो है वो लोग जाके कंप्लेन कर रहे हैं मिस्टर और मिसेस सिंधे के खिलाफ। अभी वो लोग अरेस्ट कहाँ हुए हैं? ये दूसरा केस सिचुएशन है। ऐसे में क्या सर उनको अरेस्ट करेंगे? मिस्टर और मिसेस सिंधे के लड़के के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? हाँ, अरे कुछ तो बोलो तुम लोग। अब अभिषेक No, ma'am, because they are rich. yes, okay, the answer is no, simply no. SI Rao will hesitate. हम simply नहीं कह सकते हैं कि मने वो नहीं करेंगे। will hesitate to take any action against the son of Mr. and Mrs. Sinde, son of Mr. and Mistress Sinde, ठीक है ना? और इसके पीछे कारण क्या है? Since he belongs to a well-to-do family, ठीक है ना? एक अच्छे घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ये लेवल भी लग जाता है कि वो हर तरह से सुखी है, हर तरह से संपन्न है, तो उसको चोरी करने की क्या जरूरत है? ठीक है ना? So we will say that no SI Rao will hesitate to take any action against the son of Mr. and Mrs. Sinde since he belongs to a well-to-do family. Okay? ठीक है ना? चूंकि वो एक संपन्न परिवार में जन्म ले रखा है और वो संपन्न माता पिता के पुत्र के रूप में समाज में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, तो SI राव जो है हिचकिचाएंगे उसके खिलाफ कंप्लेन दायर करने से। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं या समाज के जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके खिलाफ पुलिस अधिकारी भी जो है ठोस सबूत लेके ही आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सत्ता है, इनके पास पावर है। कई बार हम देखते हैं कि अगर गलत स्टेप कोई अधिकारी ले लेता है तो तुरंत उसका तबादला कर दिया जाता है। ठीक है ना? या अगर माफिया से रिलेटेड लोग होते हैं तो उसके साथ अनिष्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी होगा, यहाँ पे तो SI राव तो इज नॉट अ नाइस ऑफिसर वी कैन से, ठीक है ना? वो एक जो है अच्छे ऑफिसर नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि एक नॉर्मल केस में जो है, ऐसे केसेस में जो है कोई अधिकारी जो है जानबूझ के मुसीबत अपने लिए नहीं बुलाता है। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस प्रोसीड। FIR हम कर चुके हैं, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम कर चुके हैं, we have done. Now let us start. And the role of judge. The role of judge. See what is the role of the judge. But before I proceed with the role of judge, let us go through what is the role of defense lawyer. Only one sentence I will ask from you people. What is the role of the defense lawyer according to you? What role the defense lawyer plays? Stand up, you. Have a look, children. What is the role of the defense lawyer? Priyanshu, who is the defense lawyer here? Who is the defense lawyer here in this case? नहीं बोलेंगे लोग। कमला राव। Kamla Roy is the defense lawyer. She is defending whom? किसको डिफेंड कर रही है कमला रॉय? शांति है। शांति मैम। And she is defending Shanti against whom? Shanti को Mr. and Mrs. Sindhe. नहीं Mrs. Rao against the state. ठीक है ना? स्टेट वर्सेस शांति है। मिस्टर और मिस्ट्रेस सिंधे जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग।
ओके, शी इज डिफेंडिंग शांति अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है ना, ओके, वो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके तरफ से जो है खड़ा है। ओके, so what we see is the role of the defense lawyer is to prove what? The role of the defense lawyer, okay, is to prove what? The role of the defense lawyer, okay, is to prove, lawyer is to prove what? Is to prove his शांति not prove his client, ठीक है ना, as what? निर्दोष को हम क्या कहेंगे? The role of the defense lawyer is to prove his client what? As दोषी को हम accused कहते हैं, Innocent. हाँ, निर्दोष को क्या कहेंगे? जाओ, एकदम भूल जाओ तुम लोग, बेगुनाह को क्या कहेंगे? इनोसेंट। innocent. बारे भैया, हैं, रात दिन इंग्लिश के क्लासेस हो रहे हैं, हो गया। What is the role of defense lawyer? See, Kamala Roy is the defense lawyer and she is defending Shanti against the state. The role of the defense lawyer is to prove his client, okay, his or her client, ठीक है ना, यहाँ पे her भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि his होगा, as innocent, क्योंकि शांति यहाँ पे her है, okay, so वो एक जो डिफेंस लॉयर होता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वो अपने मुवक्किल को जो है बेगुनाह साबित करे और उसे बाइज्जत बरी करवाए, ठीक है ना, उसे बाइज्जत बरी करवाए। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ओके रोल ऑफ जज। तो हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल देख चुके हैं, ओके, पुलिस का रोल हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जो है जज की भूमिका को देखेंगे। हमारे देश में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियल सेटअप वी हैव इन आवर कंट्री? आयुष, मिस्टर आयुष, व्हाट काइंड ऑफ जुडिशियल सिस्टम वी हैव इन आवर कंट्री? बताओ। अभिषेक गिरी, Yes, ma'am. बोलो, किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है हमारे देश में? बोलो। हाँ, मेरा कभी कभी तो लगता है ना कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। हाँ, इतना डिटेल में जो मैं पढ़ाती हूँ, चैप्टर रीडिंग करा देते हैं, एक्सरसाइजेस दे देते हैं, हो जाता है। हाँ, वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन आवर कंट्री। बार बार कहती हूं मैं, वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एक दूसरे से सारे कोर्ट्स जुड़े हुए हैं, बार बार आप लोग भूल जाते हो। एट द एपेक्स यू हैव द सुप्रीम कोर्ट, देन यू हैव द हाई कोर्ट, एंड हियर यू हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके। और यहाँ पे सबसे निचले स्तर पे होते हैं आपके लोक अदालत और लोकायुक्त, जिनके बारे में अन्ना हजारे ने सबसे पहले जो है जिक्र करना शुरू किया था कि हर निचले स्तर पे जो है, ओके, ग्रास रूट लेवल पे लोक अदालत और लोक आयुक्त होने चाहिए ताकि लोगों को समय से न्याय मिल सके। करते रहो यही आप लोग। Have a look at the book. The judge is like an umpire in a game and conducts the trial impartially in an open court. The judge hears all the witnesses, okay. So what we see is the first point. The judge, okay, gives judgment. तो जज जो है वो अपना जजमेंट किस आधार पे देता है? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है ना, Evidence. हाँ, जो कोई भी जो है सबूत जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, उसके आधार पे जज जो है वो अपना फैसला देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ही गिव्स, ओके, जस्टिस इन एन ओपन कोर्ट, ठीक है ना, एक खुले कोर्ट में जो है ये सारी प्रोसीडिंग्स होते हैं। वहां पे जो मुवक्किल है जिसके खिलाफ आरोप लगा है उसकी तरफ से भी लोग रहते हैं, जो आरोप लगाया है वो भी प्रस्तुत रहता है, उसकी तरफ से भी लोग रहते हैं, जो अधिकारी हैं उन्होंने अरेस्ट किया है, ओके, और जितने भी गवाह हैं, और दोनों तरफ से दोनों वकील, डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सबके मौजूदगी में जो है ओपन कोर्ट में जो है केस होता है, ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट, ओके, ही एक्ट्स इम्पार्शियली, वो निष्पक्ष न्याय देते हैं, ठीक है ना, न्याय करते वक्त जो है ही एक्ट्स इम्पार्शियली,
ठीक है ना, वो किसी एक पक्ष को फेवर नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे, द जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। If the accused is convicted, then the judge pronounces the sentence. He may send the person to jail or impose a fine or both, depending on what the law prescribes. Okay? If found guilty, okay, the judge, okay, sends the accused to jail. ठीक है ना, तो अगर जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं तो जज जो है उस व्यक्ति को जेल में भेज देते हैं, कारावास में भेज देते हैं। ओके, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट ओके कीप इन माइंड व्हेन यू आर स्टडिंग द रोल ऑफ अ जज। ओके, ठीक है ना। नाउ सी व्हाट इज फेयर ट्रायल। अब निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था क्या होती है? फेयर ट्रायल, ओके, व्हाट इज द अदर मीनिंग, अदर वर्ड फॉर फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल को हम हिंदी में और क्या कह सकते हैं, बताओ जल्दी। क्या हम कह सकते हैं? न्याय संगत न्याय प्रक्रिया। हाँ, फेयर का मतलब यही ना होता है, न्याय संगत। हाँ, बिना किसी पक्ष को जो है सपोर्ट करते हुए, हाँ, आप न्यूट्रल होके जब जो है ट्रायल करते हैं तो उसको फेयर ट्रायल करते हैं ना। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया। फेयर ट्रायल मीन्स निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया। सो व्हाट इज फेयर ट्रायल? अब फेयर ट्रायल से हम क्या समझते हैं? क्या शांति के केस में फेयर ट्रायल हुआ था? आप बता सकते हो? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? बोलो, why fair trial did not take place in case of Shanti? How can you say that? हम ये कैसे कह सकते हैं? देखो, let us go through the story. Okay, see, let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. What if the court did not give a copy of the charge sheet? ठीक है ना। अब मान लो अगर कोर्ट ने जो है जो चार्जशीट जो पुलिस जो अधिकारी है उन्होंने फाइल किया था, ठीक है ना, आपने डीके बासु गाइडलाइंस पढ़ा है, आर्टिकल 22 पढ़ा है। अगर अक्यूज के खिलाफ सबूत जाता है, ओके, गवाह जाते हैं, सबूत जाते हैं उसके खिलाफ, तो उसके ओके, ठीक है ना, खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है और उस चार्जशीट के आधार पे जो है न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाती है। नाउ सी, have a look children, see charge sheet and the statements of witnesses to Shanti. What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? तो हम क्या कह रहे हैं? हम एक ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं, ओके, जिसमें सबसे पहला चीज क्या है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ओके, कॉपी ऑफ चार्ज शीट, ओके, अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो मैं लिख रही हूँ, ओके, नॉट बीइंग गिवन टू whom? गिवन टू शांति। ठीक है ना। अब जो चार्जशीट पुलिस दायर करती है वो शांति को नहीं दिया जाता है, ओके। दूसरा, ओके, द ट्रायल इज हेल्ड इन अ सीक्रेट लोकेशन। द ट्रायल इज हेल्ड, ओके, सीक्रेटली, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ, ये दोनों वहां पे मौजूद नहीं है, ना तो शांति मौजूद है, ओके, और ना ही सुशील मौजूद है। ठीक है ना, शांति एंड सुशील। अब तीसरा चीज क्या है? तीसरा देखो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए एक के बाद एक। व्हाट इफ ही डिड नॉट गिव शांति's लॉयर एडवोकेट रॉय इनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेस? ओके, कमला रॉय नॉट अलाउड, ओके, टू क्वेश्चन द विटनेस। ठीक है ना, टू क्वेश्चन द विटनेस। क्या क्या बोल रहे? Now the fourth point, have a look at the fourth point. See, okay, see,
Advocate Roy enough time to question the witnesses of the prosecution such as Mr. Sinde and instead had already decided that Shanti was guilty. पहले ही जो है ये मान लिया जाता है कि शांति दोषी है. If this had happened, then it would be a case of an unfair trial. Okay, so हम क्या कह सकते हैं? शांति not allowed to prove her innocence. ठीक है ना. अब अगर ये सारे घटनाएं घटती हैं, ये सारे जो हैं स्टेप्स अगर लिए जाते हैं एक के बाद एक, जो चार्जशीट पुलिस दायर कर रही है उसकी कॉपी अगर शांति को नहीं दी जा रही है, अगर शांति को उसकी कॉपी नहीं दी जाएगी तो क्या होगा? शांति अपने उसके तरफ से जो वकील लड़ रहा है वो उसका केस लड़ ही नहीं पाएगा. चार्जशीट में सारी चीजें मेंशन रहती हैं कि उसने उस जो मुवक्किल है, सपोजिंग शांति है, उसके ऊपर क्या आरोप लगा है, किसने आरोप लगाया है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ठीक है ना, क्या उसके पास से रिकवर हुआ है, किस चीज की चोरी लगाई है, उसका क्या अमाउंट है, वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं चार्जशीट में रहते हैं. अब अगर शांति को उसकी कॉपी ही नहीं मिलेगी तो वो अपने वकील को क्या देगी? और अंधेरे में तो तीर नहीं छोड़ा जाता है. तो शांति के वकील जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो उसकी तरफ से कैसे लड़ाई करेगा? उसको कैसे प्रूफ करेगा कि वो इनोसेंट है? यस मैम. दूसरी चीज देखो, अगर ये जो ट्रायल है, ठीक है ना, शांति के एब्सेंस में, शांति भी नहीं है, सुशील भी नहीं है, इन दोनों की गैर मौजूदगी में अगर ट्रायल हो रहा है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनके पक्ष में न्याय मिलेगा कि उनके खिलाफ न्याय की जज जो है न्याय देंगे? ठीक है ना, उनकी मौजूदगी तो जरूरी है ना. उनकी मौजूदगी जरूरी है क्योंकि उनसे संबंधित है. तीसरी चीज देखो, कमला रॉय जो है शांति की डिफेंस लॉयर है. अगर कमला रॉय को सरकार अपॉइंट कर देती है एज डिफेंस लॉयर, लेकिन कमला रॉय को चांस ही नहीं देती है कि जो गवाह आए हैं उनके साथ जो है वो सवाल जवाब करे. आपने देखा होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सवाल करते हैं मिस्टर सिंधे से, और मिस्टर सिंधे से स्ट्रेट सवाल करते हैं, वो स्ट्रेट जवाब देती हैं. लेकिन जब कमला रॉय सवाल करने जाती हैं, ठीक है ना, वो चीजों को घुमा देती है. सवाल सारे वही रहते हैं लेकिन पूछने का तरीका अलग रहता है, और एक क्वेश्चन मार्क निकल के आ जाता है कि 3 साल से शांति काम कर रही है, इस 3 साल के बीच में कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई, और ना ही मिस्टर शिंदे ने उसको चोरी करते हुए देखा है, और ना ही उसके पास से चेन निकला है. तो एक एक करके जो है क्वेश्चन मार्क्स, बहुत सारे जो है क्वेश्चन मार्क्स निकल के आ जाते हैं. तो ये क्या प्रूफ करते हैं? ये प्रूफ करते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टर शिंदे के स्टेटमेंट में कोई कमी है. और डिफेंस लॉयर को बस यही चाहिए, एक सिंगल पॉइंट चाहिए अपने मुवक्किल को प्रूफ करने के लिए कि वो निर्दोष है, और वो करती हैं, कमला रॉय प्रूफ करती हैं. अब शांति को जो है अपनी बेगुनाही सबूत का प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया जाए तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जैसे 1 महीने के बाद उसको डीएम के सामने प्रस्तुत किया गया, हो सकता था 1 साल के बाद प्रस्तुत किया जाता, ये भी तो हो सकता है ना. तो ऐसे में क्या होगा? बिना कोई जुर्म किए शांति के ऊपर आरोप लग जाएगा, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी और उसको जेल में छोड़ देगी. अब ना कोई उसकी तरफ से बोलने वाला, ना वो अपने आप को प्रूफ कर पाएगी. सो ऑल दिस आर इंस्टेंसेस ऑफ अनफेयर ट्रायल. अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अनफेयर ट्रायल. हम नहीं कह सकते हैं कि ये निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया है जो शांति के साथ अपनाई गई है, उसको न्याय दे पाएगी ये. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब इसका ऑपोजिट, अब अगर हम इसका ऑपोजिट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि शांति के केस में चार्जशीट फाइल की गई है, और चार्जशीट की कॉपी शांति को दी गई है, और वही कॉपी वो अपने लॉयर को देती है, डिफेंस लॉयर को. अब ये जो ट्रायल है, ट्रायल सबकी मौजूदगी में होता है. मिस्टर शिंदे भी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है, हर कोई है, और ओपन कोर्ट में हो रहा है, खुले कोर्ट में हो रहा है, ठीक है ना, जहां पे सब कोई है. तीसरी चीज, जितने मौके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिए जा रहे हैं विटनेसेस को क्वेश्चन करने के, उतने ही चांसेस कमला रॉय को भी दिए जा रहे हैं, हु इज द डिफेंस लॉयर.
Okay, and that is why she is able to prove her client innocent. Okay, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शांति को सरकार जो है उसकी इतनी मतलब इस शी इज नॉट एज एबल टू गो फॉर अ लॉयर, बट द गवर्नमेंट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, द गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अ डिफेंस लॉयर टू डिफेंड हर. सरकार अपनी तरफ से उसके लिए एक वकील हायर कर रही है ना यहाँ पे. हाँ, तो सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि मिस्टर और मिस्ट्रेस शिंदे जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको भी न्याय मिल जाए, और साथ ही साथ शांति को भी मौका मिल जाए अपने आप को प्रूफ करने का. अगर वो निर्दोष है तो वो साबित हो जाएगा ना. हाँ, और अगर नहीं है तो मिस्टर और मिस्ट्रेस शिंदे को जो है जो चाह रहे हैं वो होगा. Okay, so here we see that our judicial system has been designed in such a way that everyone is getting justice. न्याय जब हम कह रहे हैं कि rule of law is for everyone, so it is for everyone. आप देख रहे हैं मिस्टर और मिस्ट्रेस शिंदे जो है वो एक संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न दंपति हैं, और ये क्या है? एक काम वाली बाई है, एक डोमेस्टिक वर्कर है. बट हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहा है उसको भी न्याय मिल रहा है, लास्ट में चेन रिकवर हो जा रहा है. ठीक है ना? और यहाँ पे जिसके ऊपर आरोप लगा है वो भी निर्दोष साबित हो जा रहा है. Okay, so this is our justice. Okay, this is our judicial system where there is a chance for everyone is getting justice. हाँ, ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है. ओके, आप देखेंगे कि लगभग 1 साल लग जाता है शांति को न्याय मिलने में, बट न्याय मिलता है ना. हम ये नहीं ना कह सकते हैं कि वो न्याय से वंचित है. So see children, if this had happened then it would be a case of an unfair trial. This is because for a trial to be fair, several different procedures have to be observed. Article 21 of the Constitution, okay, that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. ठीक है ना? तो फेयर ट्रायल जब होता है तो आर्टिकल 21 की जो है, ठीक है ना, अनुच्छेद 21 की जो है मान रखी जाती है. ओके, इज अपहेल्ड. ठीक है ना? इज गिवन इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं, इज गिवन इंपॉर्टेंस अंडर फेयर ट्रायल. जब निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया अपनाई जाती है, ओके, तो उसमें जो है व्यक्ति के जो है जीने के अधिकार को जो है, ओके, ठीक है ना, प्रमोट किया जाता है. आप किसी से जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं. जीने के अधिकार में राइट टू लाइफ में हर वो चीज आती है जो एक डिसेंट लाइफ के लिए जरूरी है. राइट टू लाइफ इंक्लूड्स नॉट ओनली राइट टू लिव फॉर अ पर्सन. ओके, ले बेटा, एक सेकेंड बेटा. Okay, have a look children. So we see that article 21, it includes everything. It includes right to education, it includes right to health, it includes right to, okay, decent living, it includes right to livelihood, it includes right to, okay, safe and safe drinking water. हर वो चीज जो जीवन के लिए जरूरी है वो अनुच्छेद 21 में आता है. ठीक है ना? अनुच्छेद 21 में वो आता है. Okay, now see, let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential elements of fair trial. यहाँ से आप लोग मार्क कर लेंगे. Put a tick from here. ओम सिंह, फेयर ट्रायल क्या होता है यहाँ से मार्क करना शुरू कर दो. फर्स्टली, okay, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज फेयर ट्रायल. Shanti was given a copy of charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her. तो देखो ठीक इसका विपरीत हो रहा है. ठीक इसका विपरीत हो रहा है. शांति को एक कॉपी मिल रही है चार्जशीट की. Shanti was charged, okay, with the offense of theft that was defined as a crime in law. The trial was held in an open court. ये दूसरा पॉइंट है. Okay, trial was held in an open court in public view. Okay, her brother Sushil could attend the court hearings. उसके भाई के मौजूदगी में जो है न्यायिक प्रक्रिया हुई.
ओके ठीक है ना. द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड. शांति वहां पे मौजूद थी. ओके Shanti was defended by a lawyer. Shanti's lawyer, Advocate Kamla Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witness. ये third point हो गया. Okay. Advocate Roy was given an opportunity to present witnesses in Shanti's defense. ठीक है ना. तो एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि 3 जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इन फेवर ऑफ फेयर ट्रायल. तो अगर आपसे पूछा जाए हाँ मैम व्हाट इज क्रॉस एग्जामिन? क्रॉस एग्जामिन मीन्स टू ओके. क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है जैसे सामने आपके कोई खड़ा है. अब मान लो मैं हूँ. ओके आई एम योर टीचर. ओके एंड इन फ्रंट ऑफ मी इट इज ओम. सो ओके राइट नाउ मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा है. ठीक है ना. सी वी हैव लेस देन 1 मिनट. तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम. Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? No. The class is about to end and I'm not able to take your class at Ma'am. 1:30. हाँ बोलो प्रियांशु बोलो. मैम 4 और 5 चैप्टर का नोट्स भेज दीजिएगा ना. हाँ बेटा एक बार दोबारा मैं भेजूंगी. सारे चैप्टर्स का जो है पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी ग्रुप में. उन